आज से 1837, दिस इज 31 दिसंबर 1836, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज लीव्स द planet Earth. So somewhere how many years? Over 21 plus 85 years. Some 60, 85 years. Yeah, 85 years. So 85 साल पहले श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज, a great personality, the ray of Vishnu, leaves this planet, and so long he remains on this planet, the whole planet was blessed by his presence, and his presence was bringing the shower of pure devotion service brought from Golok Vrindavan practically everywhere across India and of course across the globe. So it's a very wonderful opportunity for all of us to glorify His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj always points out about glorification of devotees, glorification as well as worship of his devotee. In one of his last letter, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj writes fully upon what is the significance of worshipping a devotee. A person who worships Krishna but he doesn't worship his devotees, a person who worships Krishna and glorify Krishna but doesn't glorify his devotee, he is actually not the worshipper of Krishna. Very plainly writes in his letter. So that's why along with the glorification of Supreme Lord, there should be equal amount of weightage given upon the glorification of acharyas and glorification of his pure devotees. That's what the conclusion of Upanishads, and that's what has been also ascertained by acharyas. And this is one of the most important sloka of the Vedic literature. Yasya deve parabhakti yatha deve tatha gurau tasyaita kathita hi artha prakashante mahatmanah. So the Vedic conclusions gets revealed to the hearts of those who have equal amount of faith in the words of spiritual master as well as in Sri Krishna himself. Equal amount, as much it's there with Krishna, that much only with Guru. Guru means the spiritual masters, the tattva of the spiritual master. So that's why it's very, very important. In parallel with glorification of the Supreme Lord, we should also glorify acharyas. Both should go ahead parallelly. So that's why today we shall try to glorify. We cannot actually glorify, but the glories are so unlimited that we can actually purify by bathing into the shower of the glorification of great acharyas like Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj. So Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, the great warrior preacher, appears in Jagannath Puri Dham in the house of Sri Kedarnath Datta, Srila Bhaktivinoda Thakur. And Bhaktivinoda Thakur had great desire to get someone who could assist him in propagation of Krishna consciousness. And he was praying to Jagannath Swami as well as all the great acharyas, that as well as Sri Chaitanya Mahaprabhu, that, oh Mahaprabhu, please give me someone so that I could be helped in propagation of Krishna consciousness. Because after Lord Chaitanya Mahaprabhu has gone, for 250 years, there was a full gap between the teachings of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and the living entities. And in that gap has entered so many different types of sahajas, different types of deviant philosophers and deviant Vaishnava cults. There were 13 in numbers.
as mentioned by Srila Bhaktivinoda Thakur. Aul Baul, Karta Bhas, Sakhi Bakhi, Nira, Darbesh, Jat Gosai, Chuda Dhari, and like this, Sakhi, and so these all stuff. So total all are 13. So Srila Bhaktivinoda Thakur wanted to remove this all and establish Krishna consciousness, the pure Krishna consciousness movement, which was actually established by Srila Rupa and Raghunath, and of course under guidance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So he was having big trouble. Of course, Srila Bhaktivinoda Thakur was very much क्या बोलते हैं उसको influential, as well as he was not as powerful, I mean as lion as Srila Bhakti Siddhanta, his son. He was very much accommodative, सबको accommodate करके वो चलते थे, लेकिन साथ साथ में वो चाहते थे कि कोई पावरफुली इन सभी लोगों को हटाने के लिए मेरा कोई असिस्टेंट होना चाहिए. So he prayed and year 1874, 1874 में आते हैं कौन? Bimala Prasad in the house of Srila Bhaktivinoda Thakur. It was 6th February 1874. And as soon as he comes, all the symptoms of Mahapurush is exhibited in his personality. Mahapurush जो भी होते हैं उनको कुछ स्पेशल सिम्टम्स होते हैं, मतलब बॉडीली सिम्टम्स भी स्पेशल होते हैं. उनकी एक छाती चौड़ी होती है, लंबे होते हैं, या फिर उनका हैंड टू बॉडी रेशियो थोड़ा अलग जैसा होता है, या एज वेल एज ललाट बहुत ही चौड़ा होता है. तो सारा सिम्टम्स उनका शुरुआत से नज़र आ रहा था. और जब वो अपीयर होते हैं, पूरा जो अम्लाइकल कॉर्ड होता है वो जनेऊ जैसे लटका हुआ था. सो बाय बॉर्न ही वाज ए ब्राह्मण. अम्लाइकल कॉर्ड को एकदम सैक्रेड थ्रेड के रूप में लेके आते हैं. तो इस तरीके से 6 महीने के बाद एक पास टाइम्स होती है जिसमें श्री जगन्नाथ स्वामी जब जा रहे होते हैं अपने श्री क्षेत्र से गुंडीचा, श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर जा रहे होते हैं. तो प्रत्येक साल जाते हैं तो एकदम केदारनाथ दत्ता जी के घर के सामने जाके रुक जाते हैं, क्योंकि केदारनाथ दत्ता जी का मतलब भक्तिविनोद ठाकुर का घर है कहाँ पे? ग्रैंड रोड में. ग्रैंड रोड जो कि रास्ता है जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाने का, एकदम सामने ही उनका घर है. तो वहीं पे जाके जगन्नाथ स्वामी का रथ रुक जाता है. यूजुअली नहीं रुकता है, लेकिन कुछ स्पेशल लीला करने के लिए जगन्नाथ स्वामी कहीं पे रुकते हैं. और रुका रहता है कितने दिनों के लिए? 2 दिनों के लिए. चलता ही नहीं है, इतना भी हाथी घोड़े लगा लो नहीं चलता है. तो लास्ट में श्री केदारनाथ दत्ता को बोला जाता है कि आप तो मजिस्ट्रेट हैं, आप कुछ कीजिए, क्यों रुके हुए हैं जगन्नाथ साहब के घर के सामने? तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो इंगित करना चाहते हैं जगन्नाथ. तो पुत्र को भगवती देवी की गोद में डाल के मंगवाया जाता है जगन्नाथ जी के सामने. और जैसे ही बिमला प्रसाद जो कि आगे चल के श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज हैं, उनको डाला जाता है जैसे उनके चरण के पास, वैसे ही श्रील जगन्नाथ स्वामी के हाथ से एक माला गिर जाता है ऊपर से बिमला प्रसाद के गले में, छोटा सा बिमला प्रसाद, तो उनके ऊपर ही गिरता है. सभी पांडागण सभी जय जयकार करने लगते हैं कि वाह वाह, या आपका पुत्र केदारनाथ दत्ता बहुत ही अद्भुत और बहुत ही महान व्यक्ति होगा, आगे चल के कृष्ण भावना का प्रचार करेगा. और उसके बाद 1874 में 10 महीने रहने के बाद पुरी में वो चले आते हैं फिर से अपने पुराने पुश्तैनी घर. कहाँ? राणा घाट, नदिया. राणा घाट के बगल में ही वीरनगर है, वहाँ पर उनका श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का घर था. लेकिन बाद में राणा घाट में भी घर बनाए थे, तो राणा घाट में वहाँ पे लौट आते हैं. और अन्नप्राशन की लीला होती है. अन्नप्राशन की लीला होती है ना, जिसमें बच्चे के सामने बहुत सारे चीज़ों को रखा जाता है कि आगे चल के किधर ये जाएगा. जैसे कुछ पैसा, कुछ बुक्स में भी कुछ अलग अलग वैरायटी का बुक्स रखते हैं, है ना. कुछ टाका तो रखा जाता है,
और श्रीमद् भागवतम भी रखा गया था और छोड़ दिया गया था। इसको विमला प्रसाद को छोड़ा गया कि देखते हैं किधर जाता है लड़का, पैसे की तरफ जाएगा या फिर भागवतम की तरफ जाएगा। तो जब देखा गया तो विमला प्रसाद स्ट्रेट भागवतम के पास गए और उनको प्रणाम किया। तो सब लोग पूर्ण फिर से आश्वस्त हो गए कि ये व्यक्ति आगे चल के श्रीमद् भागवतम का महान प्रचारक बनेगा। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने बचपन से ही जितने भी महापुरुष के जितने सारे लक्षण थे वो सब लक्षित हो रहे थे। 32 सिम्टम्स ऑफ महापुरुष। और इस तरीके से केदारनाथ दत्ता काफ़ी खुश थे अपने पुत्र की इस तरीके की जो सिम्टम्स दिख रहे थे। जब 3 साल के थे उसी समय एक बार केदारनाथ दत्ता, एक बार की नहीं, आम तो लाया करते थे, तो आम वाली पास टाइम हुई थी। आम लाए थे और विमला प्रसाद आम उठा लिए, उसमें से आम उठा के खाने लगे। तो केदारनाथ दत्ता बोले क्या है विमला, तुम आम बिना भोग लगाए हुए खा लिया। मतलब सीजन का पहला आम है ना, क्या बोलते हैं उसका, सीजन के पहले आम को, मौसमी फल, जो पहली बार जो आता है उसको कम से कम भोग लगाना चाहिए। आपने पहले ही खा लिया आम बिना गिरधारी जी को भोग लगाए हुए। तो बहुत ही क्षोभ हुआ उनको, विमला प्रसाद को। छोटे से विमला प्रसाद कितना साल का है, तो 3 साल का व्यक्ति, 3 साल का। इतना वो चिंतित हो गया कि मैं कितना ऑफेंडर हूँ, कितना बड़ा मैं अधम हूँ कि बिना भोग लगाए हुए मैं आम को खा लिया। मैं इतना अधम हूँ कि मैं फिर से आम खाने लायक नहीं हूँ। तो उसी 3 साल की आयु में इन्होंने पूरा प्रण ले लिया कि मैं आम नहीं खाऊंगा। ये 5 टाइम्स राणा घाट की। तो उसके बाद से पूरा जीवन भर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज आम नहीं खाए। तो वो महान गुरु हो गए थे। कई डिसाइपल्स आम लाते थे गुरु महाराज, क्योंकि आम भारतवर्ष में हर जगह अवेलेबल है। किसी को दान देना है तो आम दे दो, लेकिन कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। फिर से वो डिसाइपल्स में बांट दिया करते थे। तो ऐसे थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। तो शुरुआत से ही वो सिम्टम्स दिखा रहे थे। जैसे हम लोग का क्या है कि हमारे बोझ का कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है आज से नहीं खाएंगे, लेकिन पता चल रहा है कि कुछ दिन के बाद प्रभु जी क्या है, प्रसाद है, आज से रसगुल्ला नहीं खाएंगे इतना ज़्यादा। कुछ भक्त लोग वो बना लेते हैं कि प्रभु जी सब लोग मुझे डांटते रहते हैं, या रसगुल्ला इतना खाते हो, या फिर कुछ भी है, लेकिन ज़्यादा हमारा वो नहीं चलता है, वो जो है हम लोग बना नहीं पाते हैं। लेकिन ये 3 साल का व्यक्ति, 3 साल का बंदा ऐसा भाव बना लिया कि मैं नहीं खाऊंगा आम, तो सारा जीवन तक नहीं खाया। तो सारा सिम्टम्स हम लोग देख पा रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का। बहुत स्ट्रिक्ट महापुरुष, ग्रेट महाभागवत के सारे सिम्टम्स नजर आ रहे थे। 1981 में श्रील भक्ति सिद्धांत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कलकत्ता जाते हैं। कलकत्ता में वहाँ पे भक्ति भवन का निर्माण करते हैं। और भक्ति भवन का निर्माण करने के समय में जब गड्ढा खुदवा रहे होते हैं तो वहाँ पे उनको बहुत ही सुंदर एक विग्रह मिलता है। किसके विग्रह मिलता है? कूर्मदेव का विग्रह मिलता है। और कूर्मदेव को वो देते हैं किनको? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, मतलब जो कि विमला प्रसाद थे। तो 1874 1881 कितने साल के हुए? बस 7 साल के। 1881 7 साल के। 7 साल की उम्र से ही वो क्या कर रहे हैं? कूर्म देव की पूजा कर रहे हैं, राइट। तो कूर्मा मतलब क्या है कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए। कूर्मा के ऊपर है आनंद शेष, आनंद शेष के ऊपर है क्या? पूरा ब्रह्मांड है। तो कूर्म देव की पूजा कर रहे हैं, जैसे कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की भक्ति एकदम सुदृढ़ रहे, बेसिस ग्राउंड बहुत ही कंक्रीट पावरफुल रहे। इस तरीके से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने पुत्र का ट्रेनिंग दे रहे हैं शुरुआत से। ऐसे ऐसे महान पिताजी होने चाहिए, ऐसे पुत्र को ट्रेनिंग दे, राइट। आजकल के पिताजी तो शुरुआत से ही पता नहीं क्या किस का ट्रेनिंग, कोई ट्रेनिंग देते ही नहीं है। ट्रेनिंग के लिए बस
टाइम कहाँ है ट्रेनिंग देने के लिए? ट्रेनिंग देने के लिए वो मोबाइल दे देते हैं, गेम खेलो, नेटफ्लिक्स देखो नेटफ्लिक्स देखो और गेम खेलो, मुझे परेशान मत करो, हमारे पास भी समय नहीं है। तो ऐसे बच्चों का क्या होगा? कौन सा बेसिस बनेगा? कोई बेसिस नहीं बनता है और बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन श्रील भक्तिविनोद ठाकुर एकदम पर्टिकुलर थे, अपने पुत्र को मिशन के लिए तैयार कर रहे थे, मिशन के लिए तैयार कर रहे थे। 1882 में जब वो सात साल के थे तो पूरा का पूरा जो भगवत गीता है कंठस्थ कर लिए थे, एक एक श्लोक। हम लोग 30, 31, 32 साल के हैं, पूरा श्लोक याद नहीं है कि नहीं? पूरा श्लोक, वो भी श्लोक भी बस तोते की तरह रट के बोलना नहीं, पूरा एक्सप्लेनेशन भी दे पाते थे। और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जो कुछ बोलते थे, मतलब जो एडिटिंग करने के लिए सज्जन तोषणी करके एक किताब है, मतलब उन्होंने पेरियोडिकल मैगजीन जो 15 दिन में छापता था, तो उसका वो भी एडिटिंग करना चालू की दिए। कब? 8 साल से एडिटिंग करना। 7 साल का व्यक्ति भगवत गीता के ऊपर श्लोक और उसका एक्सप्लेनेशन दे सकता है। और 1983 से सज्जन तोषणी का एडिटिंग भी चालू कर दिए थे। तो ऐसे थे पावरफुल प्रोडिजी। प्रोडिजी मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि बचपन से ही इतना धुरंधर है कि मतलब ही आउट स्मार्ट, मतलब उसके कलीग्स लोग मतलब उसे आसपास में नहीं है। प्रोडिजी उनको कहा जाता है, बोलते हैं ना मैथ्स प्रोडिजी, जो कि बहुत पावरफुल। एक मैथ्स प्रोडिजी था ना, एक व्यक्ति जो कि आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था, वो बहुत ही पावरफुल, मतलब सबसे कम एज में 12 या 13 साल में उसने ग्रेजुएट कर लिया था, ग्रेजुएशन किया था, उसने ग्रेजुएशन या पीएचडी कर लिया था। लेकिन अभी वो किसी दूसरे एक कॉलेज में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर है, लेकिन भाभा एटॉमिक में प्रोफेसर है, लेकिन उनका पूरा डिरेंज हो गया, पागल हो गया वो, उसको नींद ही आती है बस। पहले वो बिना सोए हुए पढ़ता था दिन रात, इतना बड़ा प्रोडिजी था, लेकिन अभी उसको सिर्फ दिन भर रात में नींद ही आती है वो कुछ काम का लायक नहीं। तो ऐसे नहीं थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, ये प्रोडिजी हैं, पिछले कर्म के प्रोडिजी हैं। एक्सटर्नल लिबरेटेड सोल कमिंग फ्रॉम गोलोक वृंदावन, ऐसे प्रोडिजी थे। जो गोलोक वृंदावन से आते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि कर्म के कारण कुछ दिन चमकते हैं, उसके बाद फिर डिम होके मतलब हमेशा सोते हैं, ऐसा नहीं तो पावरफुल थे। एक बार जो पढ़ लेते थे श्रील भक्ति बिमला प्रसाद, एक बार पढ़ लिया मतलब पढ़ लिया, फिर रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, पूरा स्कैन इतना फोकस्ड कंसंट्रेशन था। तो जो सारे मेन सब्जेक्ट थे पढ़ लेते थे। जैसे मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी उनका बहुत ही उसका पकड़ था उनका, और काफ़ी रिसर्च किया था उन्होंने स्पेसिफिकली एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, और इतना अच्छा रिसर्च किया था कि एक बुक भी बनाए थे ना, क्या नाम था उसका? सूर्य सिद्धांत। तो सूर्य सिद्धांत को देख के जितने एस्ट्रोलॉजर, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने बोला कि इस व्यक्ति को उपाधि देना चाहिए, तो उन्होंने सिद्धांत सरस्वती का उपाधि दिया, इस व्यक्ति का नाम रहेगा सिद्धांत सरस्वती। तो इस तरीके से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति सिद्धांत बाद में नाम पड़ा, लेकिन सिद्धांत सरस्वती उनका टाइटल पहले ही हो गया था, राइट तो संस्कृत भी पढ़े, और कलकत्ता में एक संस्कृत कॉलेज था, उसमें नाम लिखवाया गया था उनका। लेकिन इतने महान एस्ट्रोलॉजर थे, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर को वो पानी पिला देते थे। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे ही केशव काश्मीरी को हराए थे, वैसे ही एक व्यक्ति था, उसका नाम था क्या? साहित्याचार्य, पंचानन साहित्याचार्य। पंचानन साहित्याचार्य के साथ डिबेट किए थे 1883 में श्रील बिमला प्रसाद एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, और वो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर था। तो डिबेट कर रहे थे कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन महान है एस्ट्रोलॉजर। तो लगातार 4 या 5 घंटे डिबेट करने के बाद अंततः वो हार गया। हारने के बाद ऐसा शेमफुल हार हुआ कि वो मतलब बैठे बैठे उनका पूरा पैंट भीग गया था। मतलब ही कुड नॉट कंट्रोल हिज नेचर्स, मतलब कि नेचर्स कॉल, वो
कंट्रोल नहीं कर पाए, पैंट पूरा, पैंट या फिर धोती, उस समय पर धोती पहना करते थे लोग, है ना, तो उनकी धोती पूरी गीली हो गई। तो इस तरीके से 1885 में, कितने साल के, 1885 में 11 साल के थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर जो बोलते थे उसको लिखने के लिए उन्होंने एक शॉर्ट हैंड की इन्वेंशन किया था। भक्ति विनोद ठाकुर इतना कुछ बोल रहे हैं, उनको लिखना है ना, तो बिकानो करके एक शॉर्ट हैंड खुद बना लिए थे वो। 1887 में जब वो 13 साल के थे तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उनको गायत्री मंत्र देते हैं, हरि और नरसिंह मंत्र, इस तरीके से। तो कहा जा सकता है कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उनके पिताजी उनके ही शिक्षा गुरु थे, सब कुछ एक एक करके उनको ट्रेन कर रहे थे। 1890 साल में कलकत्ता में वो 16 साल के थे, तो एक सभा का संगठन करते हैं, सभा बनाते हैं, जिसका नाम वो रखते हैं क्या, चीर कुमार सभा। चीर कुमार मतलब, चीर मतलब बहुत दिन तक कुमार रहने वाला सभा, जिसमें जितने भी कलकत्ता के इन्फ्लुएंशियल जो सेलिब्रेट लोग रहे वो सब रहेंगे और ट्राई करेंगे कि हम शादी ना करें। तो मतलब क्लब बनाए थे जिसमें ब्रह्मचारी लोग रहेंगे, those who do not want to marry, they could study books, like if they have not married they could do something extra work। तो चीर कुमार सभा बनाए थे, लेकिन उस चीर कुमार सभा में कोई नहीं रहा चीर कुमार। सबकी शादी हो गई एक्सेप्ट फाउंडर ऑफ चीर कुमार, वह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। सो 1892 में जब वो 18 साल के थे तो कलकत्ता संस्कृत कॉलेज में जाते हैं, और 1892 से 95 तक 21 साल तक क्या करते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, संस्कृत कॉलेज में पढ़ते हैं। और जब 5 साल मतलब कि 3 साल में इतना महान संस्कृत स्कॉलर हो जाते हैं कि सभी लोग चाहते हैं कि ये व्यक्ति और पढ़े और आगे बढ़े और भी ज़्यादा, और यहाँ तक कि चेयर की उपाधि भी दे रहे होते हैं वहाँ पे। जो संस्कृत के जो मेन हेड होते हैं संस्कृत कॉलेज के, आप चेयर की उपाधि, आप चेयर क्या बोलते हैं, चेयर एक सीट है, एक पोजीशन है, उसको ग्रहण कीजिए। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज सोचते हैं कि ये टू मच है, दिस इज टू मच, सो आई कैन नॉट परस्यू दिस मोर। If I'll pursue this more, then they will give more and more medals, more and more chairs and kursis. So in this way, I'll get entangled in so-called worldly क्या बोलते हैं उसको, attachments, and I will more into scholastic pursuit. So better I should leave, because I have come here just to preach and learn the message of Rupa Raghunath. So this is my first objective. So 1895 में बिना डिग्री लिए हुए कॉलेज छोड़ देते। तो ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। आपने नहीं सोचना कि यस तो चलो बहुत परसूट हो गया, टेक्नोलॉजिकल परसूट है, या फिर we cannot imitate them, right? We should not imitate them, but we should follow the cyclic succession. That's very important. But Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj could do, we cannot imitate, but we should follow. The principles should be followed, and not getting entangled into that, and leaving the mainstream devotional service. So in 1897, when he was 23 years old, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj establishes his own institution to teach astrology and mathematics, specifically astrology and Sanskrit, along with Vaishnava literatures. So and that was the first Chatuspati after Mahaprabhu's time, first Chatuspati in Calcutta. So now also the Chatuspati trend is coming in Sridham Mayapur. So we have one Paratattva Chatuspati created by made by one devotee, Padma Mukh Nimai Prabhu. So in 1897, he establishes Chatuspati. From 1897, he practices powerful sadhana, very powerful sadhana. Like before he was the son of magistrate, now he was like celibate
teacher, but still he is sleeping on the floor without having any takiya, without having any pillow, and very strict sadhana, perfectly following the celibacy. In 1898, when Srila Bhaktivinoda Thakur, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So 1897 में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अपीयरेंस प्लेस है उसका खोज कर लेते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज और श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जो कि उसमें वृंदावन में होते हैं, वृंदावन में भजन कर रहे होते हैं, तो उनको बोलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप लोग कहाँ जाइए, नवद्वीप जाइए, अब नवद्वीप में जाके चैंटिंग कीजिए, क्योंकि नवद्वीप और वृंदावन एक ही है। तो फिर वो वहाँ से यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे मिलते हैं किनसे, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर से मिलते हैं, और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के साथ बैठते हैं, उनके साथ उनके संग में रहते हैं, और साथ साथ में रहते हैं कौन, श्री बिमला प्रसाद। तो एक साथ हमारे 4 आचार्य एक जगह पे मिलते हैं। वो क्या है, गोद्रुम द्वीप में। गोद्रुम द्वीप मतलब कि इधर से गंगा आती है और इधर से सरस्वती, और उसके बगल में गोद्रुम द्वीप, जहाँ पे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपना घर बनाते हैं, स्वानंद सुखद कुंज। और वहाँ पे 4 आचार्य मिलते हैं, जहाँ पे बिमला प्रसाद 23 साल का है, और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर वही करीब कितने साल के, 50-55 साल के हैं, और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज वही अराउंड 56 या फिर 60 इस तरीके, जगन्नाथ साहब थोड़ा और। तो सारे के 4 आचार्य का वहाँ पे मिलन होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु सभी आचार्यों को वहाँ पे मिलाते हैं, लेकिन सबका जो स्पिरिचुअल हायरार्की है वो अलग अलग है। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के शिष्य होते हैं इसलिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। उसके बाद गौर किशोर दास बाबा जी महाराज शिक्षा डिसाइपल हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के, क्योंकि जब भी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर प्रवचन किया करते थे सप्ताह में तो श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज सुनने के लिए आते थे। ऐसा नहीं कि बाबा जी महाराज हैं तो बस उनको अपना भजन से छोड़ कर और किसी से काम नहीं, सुनने के लिए आते थे भक्तिविनोद ठाकुर के प्रवचनों को। और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला कि आप गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से क्या लीजिए, दीक्षा ग्रहण कीजिए। अपने पुत्र को बोला, बिमला प्रसाद को, क्योंकि महान वैष्णव है, अब इनसे दीक्षा ग्रहण कीजिए। तो जब वृंदावन से आते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता है, बस एक माला गले में, कंठी माला, और एक माला हाथ में, एंड कॉपी इन, दैट्स इट। और ठंड से बचने के लिए एक बाघ का छाल जो कि टोपी के रूप में पहनते हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, बस यही होता है, जो कि उनके गुरु दिए होते हैं बस तो ऐसे थे। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के लिए बोला जाता है, श्री भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि आप बिमला प्रसाद आप जाइए, इनसे दीक्षा ग्रहण कीजिए, यही आपके गुरु होंगे। तो इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है, कठिन होता है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज मतलब बिमला प्रसाद को दीक्षा प्राप्त करना। आजकल की जैसा नहीं कि बस फॉर्म भरे, 6 महीना 16 माला जप, 4 नियम पालन करो और उसके बाद बस हो गया दीक्षा। ऐसा आसान नहीं था पहले, यहाँ आसान कर दिया गया, उन्हीं की कृपा है। जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास अप्रोच करते हैं, इट वॉज 1900 में, तो गौर किशोर दास बाबा जी बोलते हैं कि अरे तुम तो इतने महान व्यक्ति हो, तुम सिद्ध सूर्य सिद्धांत और सिद्धांत शिरोमणि हो, एस्ट्रोलॉजर के महान पंडित हो, और मैं कहाँ कुछ भी नहीं जानता हूँ, निपट अनपढ़, मैं तुम्हारा दीक्षा गुरु कैसे बन सकता हूँ? जाओ जाओ जाओ, मैं लायक नहीं हूँ तुम्हारे गुरु बोल रहा है कि डिसाइपल को, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ तुम्हारा दीक्षा गुरु बनने की। और श्री बिमला प्रसाद बोलते हैं कि इस संसार में मैंने बहुत ऐसे ऐसे महान मेरे मास्टर्स हुए हैं, क्योंकि सभी लोग वैष्णव नहीं थे।
और इस तरीके से मैं स्कॉलस्टिक परसूट के कारण मैं कहीं गड्ढे में जा रहा था, लेकिन आपकी कृपा है जिसके कारण मैं बच पाया हूँ। कृपया मुझे ग्रहण कीजिए, आपके सिवा मेरा कोई दूसरा चारा नहीं है, दूसरा कोई शेल्टर नहीं है। प्लीज़ ओ वैष्णव ठाकुर, प्लीज़ एक्सेप्ट मी। तो पहले दिन तो ऐसी टरका के बोल चले जाओ चले जाओ। मैं महापुरुष से पूछूंगा, महापुरुष से पूछ के बताऊंगा कि तुमको दीक्षा देना है कि नहीं। दूसरे दिन आते हैं तो पूछते हैं कि क्या आपने पूछा महापुरुष से गुरुदेव? तो बोले कि पूछना था, तो भूल गया। तो फिर भूल गया मतलब कि हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज बहुत ही सीरियस थे उसके प्रति। तो गुरु महाराज क्या आज्ञा बताइए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो जो भी सेवाएं थी वो किया करते थे। ऐसा नहीं कि एक बार ऑफिशियली दीक्षा हो गया उसके बाद सेवा चालू होगा, ऐसा नहीं। द रिलेशनशिप बिटवीन स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिसाइपल इज इटर्नल। इट्स नॉट लाइक नो ऑफिशियल, जब तक दीक्षा नहीं हुआ तब तक गुरु नहीं। ही ऑलरेडी एक्सेप्टेड गौर कृष्णदास बाबूजी महाराज एज ही स्पिरिचुअल मास्टर एंड ही वाज सर्विंग, बट ही वाज नॉट एक्सेप्टिंग ऑफिशियली। गौर किशोरदास बाबूजी महाराज वाज नॉट एक्सेप्टिंग। तो फिर उनको बोल दिए चले जाओ, मैं महापुरुष से पूछूंगा। फिर से आए, फिर बोले भूल गए, पूछा नहीं। तो फिर तीसरे दिन आते हैं तो बोलते हैं कि महापुरुष ने बोला कि नहीं दे सकते। तो उसके बाद तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई बोलते हैं कि हाँ क्यों देंगे, आप और आपके चैतन्य महाप्रभु दोनों तो उस व्यक्ति के भक्त हो जो कि एक नंबर का लंपट है, एक नंबर का डिबोची है। आप लोग मेरे जैसे व्यक्ति को कहाँ, मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर कहाँ कृपा करेंगे? मैं तो लायक नहीं हूँ उसके। ठीक है, हाँ, अगर आप कृपा नहीं करेंगे तो प्राण रखने से कोई फायदा नहीं है। मैं प्राण छोड़ देता हूँ। और बहुत ही पावरफुल है। बिमला प्रसाद बोल रहे हैं, मतलब गौर किशोरदास जी महाराज सोच रहे हैं कि व्यक्ति बहुत ही सिंसियर, बहुत ही सीरियस है, सही में प्राण छोड़ देगा ये। तो सुसाइड करने वाले थे। बगल में ही एक वो था, ब्रिज था, मैं जाता हूँ ब्रिज से ऊपर कूद जाऊंगा बस। तो गौर किशोरदास जी महाराज बोले कि बिमला प्रसाद, यू हैव पास्ड माई एग्जाम, आ जाओ दीक्षा देते हैं, जाकर नहा के आ जाओ, वही पानी में जाके नहा के आ जाओ। पानी मतलब कि सरस्वती में, सरस्वती रिवर बहती है ना मायापुर में, इधर सरस्वती इधर से गंगा, सरस्वती में स्नान करके आओ, आज तुम्हें दीक्षा दूंगा। तो इस तरीके से दीक्षा मिलती है। शिला बिमला प्रसाद को, और नाम दिया जाता है क्या? श्री बारसभानवी देवी दैत दास। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज का दीक्षित नाम जो होता है वो क्या होता है? श्री बारसभानवी देवी दैत दास। मतलब बारसभानवी मतलब बृषभानु की पुत्री श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी के बहुत ही प्रिय, दैत मतलब बहुत ही प्रिय, बहुत ही प्रिय हैं। और ऑफ कोर्स ही इज one of the very much close associate of Srimati Radharani called Nayana Manjari, right? Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Gosai Maharaj. So in this way he takes the instructions to preach from Srila Gaur Kishora Das Babaji Maharaj. और 1900 में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बहुत प्रचार कर लिए होते हैं, नाम अटका इस्टेब्लिशमेंट कर लिए होते हैं, बहुत सारी किताबें लिख लिए होते हैं। अब 1900 में वो चाहते हैं क्या कि मैं अब थोड़ा सेल्फ भजन में जाऊं। That time it was a culture. So those who are exalted soul, they could only go, and very less number of people were there, devotees. तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर चले जाते हैं कहाँ? जगन्नाथपुरी। तो कुछ भक्त जगन्नाथपुरी गए होंगे, तो जहाँ पे इस्कॉन मंदिर है उसी जगह पे, वहाँ पे जाके वो एक इस्टेब्लिशमेंट करते हैं जिसका नाम होता है भक्ति कुटीर। भक्ति कुटीर का वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज भी साथ में जाते हैं और वहाँ पे उनको हेल्प करते हैं। श्रील हरदास ठाकुर समाधि के बगल में है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का जो स्पीच है उसको सुनने के लिए बड़े बड़े लोग वहाँ पे आते हैं।
उसी तरीके से उस समय का एक व्यक्ति था जो कि बाद में सहजिया मंत्र बनाया था, जपो हरे कृष्ण हरे राम वाला, भजो निताई गौर राधे श्याम, like this, something like that he created. His name was Radha Charan Babaji. So he used to come to sit in the talks of Srila Bhaktivinoda Thakur. But Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami was always telling his father that why this fellow is coming here. उसको क्या है, तो पूरा गंडगोल है। भक्तिविनोद ठाकुर उनको समझाते थे कि ऐसा मत करो, लेकिन श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज वेरी मच क्या बोलते हैं उसको, he was determined not to entertain him. So actually he started Sajya Pratha, Sakhi Bikhi, and he started this mantra called this, what I told. I should not speak once again, otherwise people will get bewildered more. So their principle is that Hare Krishna Mahamantras cannot be chanted loudly, but Mahaprabhu chanted loudly Hare Krishna Mahamantra. Srila Rupa Goswami has told also that Hare Krishneti Uchcheshwarer, उच्च स्वर में श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र गाते थे, कोई दूसरा मंत्र नहीं गाते थे। तो उन्होंने दूसरा एक तीसरा ही मंत्र ईजाद कर लिया और इस तरीके से प्रचार कर रहे थे। और अपने ही कुछ डिसाइपल्स को बोले कि ये नित्य अपने फॉर्म में आ चुके हैं, तो उनको माता जी का ड्रेस ही पहना दिया। and telling them to be Lalita Asiki or something like that. So Srila Bhaktisiddhanta is very, very powerful against these all nonsensical things. He started preaching against Radha Charan. So because that time he was also quite influential and so many people were following Radha Charan. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, because of him, his staunch preaching, what happened? There was a dissension. So many people started telling that no, this is not, this boy is not good, he is creating disturbance. तो बिमला प्रसाद बोले कि देखो यार, अभी बिमला बहुत मुश्किल है, अभी सब लोग का दिमाग पहले से फिरा हुआ है, आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप जाओ मायापुर, वहाँ पे भजन करो बस, और कुछ तुम्हारा कुछ काम नहीं है। जाओ, ऐसे प्रीचिंग नहीं होगा। You go and do intense साधना इन श्रीधाम मायापुर। तो वहाँ से वो डायरेक्टली कहाँ पे आ जाते हैं? श्रीधाम मायापुर पहुँच जाते हैं, और मायापुर में पावरफुल हरिनाम संकीर्तन करते हैं, जप करते हैं। कितना माला जप करते हैं प्रत्येक दिन? 192 राउंड्स, एग्जैक्टली एज श्रील हरिदास ठाकुर, एवरीडे 192 राउंड्स। और किस पे जप करते हैं? एक छाता लेके जप करते हैं। छाता मतलब ठंडी गर्मी सब में छाता, राइट। छोटा सा थैच बनाते हैं, जो जगह है क्या बोलते हैं, चैतन्य मठ, उसके पास कुछ नहीं रहता उस समय। मायापुर में कुछ भी नहीं रहता है, पूरा खेत, और वहाँ पे बैठ के जप करते हैं। और खाना किस पे, कहाँ पे खाते हैं? जमीन पे खाना खाते हैं, सूखा राइस बस, और जमीन पे खाना खाते थे। सो मच ऑस्टेरिटी। So he calculates that if I will do 192 rounds for 9 years, then it will go how many years? How many number of holy name? 1 billion. How many? 1 billion. So it's mentioned also in Kalasantara Upanishad that if somebody has chanted 1 billion names, means his perfected soul even into this body. So 1 billion names make you perfectly eligible to return home back to Godhead. So he makes it the point that 9 साल में मैं क्या करूँगा? 1 बिलियन नाम जप करूँगा। उसके बाद जप करके फिर निकलते हैं फिर हरिनाम संकीर्तन के लिए। यहाँ तक कि जब वो कर रहे होते हैं, एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व सब सामने आ जाते हैं, बोलते हैं कि बहुत हुआ भक्ति सिद्धांता, नाउ कम आउट एंड गो आउट एंड प्रीच, एंड वेरेवर यू विल गो आई विल बी देयर विथ यू। तो 1905 ये 1898 से 1905 ये वाला जो टाइम बहुत सारा इम्पोर्टेंट एक्टिविटी श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज एक्सिक्यूट करते हैं। वो उधर बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी कर रहे हैं।
उसके बाद 1910 में प्रचार चालू करते हैं। जब वो प्रचार चालू करने वाले होते हैं उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु काफ़ी हेल्प करते हैं। एक व्यक्ति होता है रोहिणी कुमार घोष, उसको भगवान की भक्ति करनी होती है, तो एक किसी बाउल के पास, बाउल होते हैं ना कुछ लोग सो कॉल्ड श्री चैतन्य महापुरुष फॉलोअर्स, उनके पास जाते हैं दीक्षा ग्रहण करने के लिए। लेकिन सपने में क्या आता है कि जो बाउल है और उसका जो वाइफ है, दोनों लायन और लायनेस के रूप में आते हैं वो उस व्यक्ति के स्वप्न में। उसका नाम होता है रोहिणी कुमार घोष, और दोनों खाने के लिए दौड़ते हैं किसकी तरफ, उस व्यक्ति को। तो वो भागता है वहां से, जैसे भागता है तो रास्ते में मिलते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज, और बोलते हैं कि वो डंडा लिए होते हैं और बाघ और शेर और बाघ और बाघ इनको डंडा मार के भगा देते हैं। तो फिर वो रोहिणी कुमार घोष व्यक्ति को खोजने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज को कलकत्ता से कहाँ आते हैं, मायापुर आते हैं, और वहाँ पे शरण लेते हैं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज का। He becomes the first disciple, रोहिणी कुमार घोष, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज। So even though he becomes the spiritual master, then he never accepts his disciple as to be like his servant. He always accepts his disciple as representative of his spiritual master. वो अपने disciples को क्या बोल देते हैं, प्रभु। और ऑफ कोर्स शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भी वैसे ही अपने डिसाइपल श्री बिमला प्रसाद को क्या बोल देते हैं, माई प्रभु, सो माई मास्टर। सो दिस इज द प्रिंसिपल शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज टोल्ड, मीन्स spiritual authority means it doesn't mean that we are the Lord, but we are the servant. Spiritual authority doesn't mean that we are order supplier of so many people, but we are just servant. So Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj to tell that if somebody this is actually order of Sri Chaitanya Mahaprabhu that everybody should become guru. जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु होइया तारो होई देश. But one starts considering himself to be guru means he is not guru. His U turns into O. He becomes Guru. So that we have to always consider it upon. So one remains guru as long he considered himself to be the servant. As soon as he becomes supposedly master, then in this same time he becomes guru. That's one of the principle. 8 सितंबर 1911 उस समय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर रहते ही हैं प्लैनेट पे. तो ऑफ कोर्स श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का ऐसा पावरफुल प्रीचिंग के कारण पूरा तहलका मच रहा होता है. कास्ट कॉन्शियस ब्राह्मणास, स्मार्ट ब्राह्मणास, आउल बाउल करता भा सखी बेकी सब में तहलका मचाए होते हैं. जहां पे भी जाते थे मतलब कि रास्ता साफ हो जाता है, साफ. कोई भी मायावादी, कोई भी व्यक्ति, बोला जाता है कि अगर उधर से आ रहा है तो रास्ता छोड़ के भाग जाते थे उधर से. अगर इधर से भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज है, उधर से कोई आ रहा है मैं तो पकड़ के कॉलर पकड़ के उससे शास्त्रार्थ करके उसको हटाते थे. नेचर कॉल भी पकड़ नहीं पाते थे लोग. इतना खतरनाक प्रचारक थे श्रील भक्ति सिद्धांत. साउथ इंडिया जब गए थे, साउथ इंडिया में बड़े बड़े पंडित से मिलते थे. साउथ इंडिया में कल्चर अभी भी है, तो बड़े बड़े पंडितों से डिबेट होता था, सब में वो विजय प्राप्त किए थे. वेरी पावरफुल प्रीचर. अरे सिंह गुरु का जो उनको मिला था, ये साउथ इंडिया में ही मिला था. जो उनका सिंह गुरु का जो नाम है, सिंह गुरु, साउथ इंडिया में. तो वहाँ पे जाके रिसर्च किए थे स्पेसिफिकली रामानुजाचार्य संप्रदाय से कि हाउ दे आर एक्चुअली मेंटेनिंग देयर सोसाइटी ऑफ स्पिरिचुअल परंपरा, and how they are accepting sannyas, because गौड़िया वैष्णविज्म में संन्यास का कोई सिस्टम नहीं था. मीन्स त्रिदंडा संन्यास, it was not so much. Either you just simply remain in Gesta ashram and chant, and then after that you have to become Paramahansa. There is no transition. There is no transition as such, varnashram transitions. तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज चाहते थे कि ऐसे कैसे होगा, either somebody is inside or somebody is outside. मतलब कोई ट्रांजिशन ही नहीं है.
तो उन्होंने वर्णाश्रम धर्म, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए रिसर्च किया। और वो प्रिंसिपल जो कि श्री संप्रदाय में है उसको उन्होंने कहाँ पे लाया? गौड़ीय वैष्णविज्म में लाया। तो 8 सितंबर 1911 को जब पूरा फैला रहे थे, भक्ति समाज में प्रचार कर रहे थे, भक्ति विनोद ठाकुर को एक चैलेंज मिला था ब्राह्मण सभा से कि आप लोग आइए, अगर आप ऐसे ही बोलते हैं कि वैष्णव आर ग्रेटर देन ब्राह्मणस, देन एस्टैब्लिश योर पॉइंट हियर। तो इट वाज इन मिदनापुर, मिदनीपुर, देखिए। तो 8 सितंबर 1911 को वो सभा रखा गया था, जिसमें श्री भक्ति विनोद ठाकुर को बुलाया गया था। अंडरस्टैंडिंग कि भक्ति विनोद ठाकुर इज वेरी ओल्ड मैन, ही कैन रिप्रेजेंट। मैं भक्ति विनोद ठाकुर बोले, देखो बिमला, भक्ति सिद्धांत मैं बहुत ज़्यादा पुराना हो गया हूँ और शरीर भी इतना सही नहीं रहता है, तो आप जाओ, आप प्रेजेंट करना मुझे, ठीक है। तो बिमला प्रसाद ने तुरंत ही कुछ ही दिनों में पूरा का पूरा नोट बनाया, पूरा एक बुक लिख दिया उसके ऊपर, ब्राह्मणिज्म वैष्णविज्म के ऊपर, और भक्ति विनोद ठाकुर को प्रेजेंट किया कि ये सारा चीज़ है, मैं लिखा हूँ इसके ऊपर, कंटेम्पलेट करके बताइए कैसा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर पूरा गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, वाह मेरा पुत्र, क्या तुमने लिखा है, जाओ यू विल विक्टोरियस। तो पहुँचते हैं ट्रेन से, बिंदापुर पहुँचते हैं, और 2-3 और उनके सहायक जाते हैं। लेकिन जब वो लोग बोलते हैं, मतलब ब्राह्मण, कास्ट ब्राह्मण, what is Brahmana, they also doesn't know well. So they started telling, but when Bimla Prasad told first day, so he simply glorified who is Brahmanas from different Vedas, different literatures. इसको देख के सुन के तो बहुत अच्छा लगा उनको कि वाह, ये तो आया था वैष्णविज्म को इस्टेब्लिश करने के लिए, पूरा ब्राह्मणिज्म ही इस्टेब्लिश कर रहा है। बहुत खुश हुआ। उसके बाद फिर बताना चालू किया कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन वैष्णव एंड ब्राह्मणिज्म। उसके बाद क्या ऐसा है क्या, ओके। उसके बाद बताइए कैसे अब वैष्णविज्म इज सुपीरियर देन ब्राह्मणिज्म। तीसरा दिन जब वो गा रहे बोल रहे थे तो फिर धड़ाधड़ चल रहा है, श्लोक के बाद श्लोक, श्लोक के बाद श्लोक। तो लोगों ने बोला कि भागवतम में तो बहुत है ऐसा, भागवतम छोड़ के। तो फिर भागवतम छोड़ के फिर जब चालू किए तो फिर उसमें भी कोई लिमिट नहीं है श्लोकों का। फिर बोला कि ठीक है, स्मृति शास्त्र छोड़ के, तो फिर उपनिषद पकड़ लिए। फिर उपनिषद कितना ज़्यादा, स्क्रिप्चर का नाम ही पता नहीं है हमें। लेकिन हमें तो स्क्रिप्चर का नाम पता नहीं है, स्क्रिप्चर में से कोट कर रहे हैं। तो मतलब लाइक प्रोडिजी तो मतलब पहले ही सही थे। तो इट वॉज लाइक मैदान साफ। एट लास्ट कंक्लूडिंग लेक्चर वाज गिवन बाय श्रील भक्ति सरस्वती महाराज। ऑथोरिटी ने बोला कि कंक्लूडिंग लेक्चर यही दे सकते हैं। कंक्लूडिंग लेक्चर दिए तो दिस वाज लाइक हिलेरियस। सब लोग सोचे कि दिस पर्सनालिटी इज नथिंग बट महापुरुष। जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही पूरा का पूरा चारों तरफ से लोग आ गए हल्ला करते हुए, कोमोशन करते हुए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को उठा लिया भीड़ में। जैसे कंसर्ट सब में होता है ना, अब कोई लोग फेंक देते हैं अपने आप को भीड़ में, और इस तरीके से उनको ऐसे तो भक्ति सरस्वती महाराज को भीड़ में सब उठा लिया। और भीड़ में उठा के क्या कर रहा है, चरण में से चरण पकड़, धूल सारा धूल। तो पुलिस सोचा कि ये तो बहुत गड़बड़ है, स्टैम्पीड हो जाएगा, यहाँ पे भगदड़ मच जाएगी। तो पुलिस आई, बोला कि भक्ति संत को नीचे उतारो। उनको ले जाया गया वहाँ पे रूम पे ले जाके कई बकेट्स पानी डाला गया उनके चरण में, और एक टैंक बनाया गया चरणामृत का। बोला गया सब लोग लाइन लगाइए, सबको मिलेगा, सबको थोड़ा थोड़ा चरणामृत मिलेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ऐसे पावर प्रीचर थे। उसके बाद 1912 में देखिए इतना उनका सम्मान मिला। 1912 में एक बहुत बड़े राजा हैं, मणिंद्र चंद्र नंदी, कासिम बहादुर के उस समय थे। तो उनके पास उनका इन्विटेशन आया था राजा से, तो वहाँ पे प्रचार मतलब कि भगवत चर्चा करने के लिए। और ये मणिंद्र चंद्र नंदी जी और दूसरे लोगों को ही बुलाए थे, मतलब समझ रहे हैं आप, उस समय जो उस समय इन्फ्लुएंशियल थे, ये सजिया और ये सब जात गोसाई।
तो जब बोलना तो उनको बोलने का अवसर ही नहीं मिला, इन्हीं लोग सब सारा टाइम निकाल दिए। ऐसा कई बार श्रील प्रभुपाद जी के साथ भी हुआ था। अब पढ़ेंगे बायोग्राफी ऑफ श्रील प्रभुपाद, तो उसमें कई बार श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं यू टेक केयर, डिसाइपल्स को बोलते हैं यू टेक केयर ऑफ द लिविंग। तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज को 3 दिन तक टाइम ही नहीं दिया उन लोग कुछ बोलने का। तो बिना कुछ बताए हुए तीसरे दिन भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज वहाँ से निकल गया। 3 दिन तक खाए नहीं, मतलब जिस दिन नहीं मिला उनको बोलने का अवसर उस दिन नहीं खाए, दूसरे दिन नहीं मिला अवसर उस दिन भी नहीं खाए, तीसरे दिन भी नहीं खाए, बिना खाए हुए चले आए। कहाँ चले आए? मायापुर। मायापुर में धुबुलिया स्टेशन है, लोग जानते हैं, जो कृष्णनगर के पास धुबुलिया स्टेशन ट्रेन रुकी। 11 बजे रात में निकले थे, 11 बजे रात में निकले, 2:30 बजे पहुँचते हैं कहाँ? धुबुलिया स्टेशन सुबह में। और 2:30 बजे धुबुलिया स्टेशन से मायापुर कितना किलोमीटर है? 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर पैदल आते हैं बिना खाए पिए। और बाद में इधर ये जो कास्ट ब्राह्मण लोग हैं, कास्ट कॉन्शियस, इन लोग क्या कंप्लेन कर दिया मनिंद्र चंद्र को कि पता है विमला प्रसाद आपके घर में क्यों नहीं खाया? क्योंकि आप जात के तेली हैं। तेली मतलब जो तेल बेचते हैं, इसलिए आपके घर पे नहीं खाया। तो उनको लगा कि हाँ ऐसा क्या। लेकिन बाद में फिर कन्फ्रंट हुआ भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि मुझे श्री हरि का ग्लोरिफिकेशन करने का अवसर नहीं मिला, मैं क्यों प्रसाद, मैं क्या खाऊं, क्यों खाऊं मैं, या फिर मैं आपको कुछ उपकार ही नहीं किया, मैं आपको शुद्ध हरि कीर्तन जो क्या होता है उसको मैं बताया ही नहीं, तो मैं तो सेवा नहीं किया, फिर मैं आपसे क्यों कैसे सेवा ले सकता हूँ? 3 दिन तक भूखे प्यासे, समझ रहे? सीधे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज की। उसके बाद 1912 में एक और आता है जहाँ पे जब गौड़िया वैष्णव लोग जब गायत्री करते हैं तो उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का ही मंत्र होता है। जैसे हम लोग को श्री चैतन्य महाप्रभु का ही मंत्र मिला तो उसमें गौर एक शब्द आता है। तो काफ़ी लोग बोले कि ये सब चैतन्य महाप्रभु तो शास्त्र में है ही नहीं, आप इनका गायत्री मंत्र कैसे इफेक्टिव होगा बताइए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इसको इस्टेब्लिश करते हैं और वो कोट करते हैं कहाँ से, अथर्ववेद से कोट करते हैं। रहस्यम ते वदिष्यामि जानवी तीरे नवद्वीपे गोलाख्य धामनी गोविंदो दिभुजो गौर सर्वात्मा महापुरुषो महात्मा महायोगी त्रिगुणातीता सप्तरूपो भक्तिम लोके कषा इतीति तद एते श्लोका भवंती। और ये सभा होता है गौर श्री चैतन्य महाप्रभु जो गौर शब्द है इसकी जेन्युइनिटी को स्टैब्लिश करने के लिए नवद्वीप में। और उस सभा में श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भी ऑडियंस होते हैं और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आकर वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे वेद से उपनिषद से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ वेद उपनिषद ही समझते हैं, वो पुराण वुराण नहीं समझते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में तो उपनिषद में लिखा हुआ है, चैतन्य उपनिषद है, चैतन्य उपनिषद जो कि अथर्ववेद का एक सेक्शन है। जब प्रेजेंट किया तो उसके बाद इट वॉज ऑल्सो अनदर हिलेरियस प्रेजेंटेशन। और उसी में गौर किशोर बाबा बैठे हुए थे और वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि वाह व्हाट ए ग्रेट माय प्रभु। सो he appreciates his disciple telling that my Prabhu is so wonderful. Srila Bhaktivinoda Thakur lives in 22nd June 1914. Then Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, and of course Gaur Kishore Das Babaji Maharaj also lives in 17th November 1915. And 1918, 29th of March 1918, Srila Siddhanta Saraswati Maharaj takes sannyas from his spiritual masters, keeping his spiritual master's photo. Yeah. So this was like another out of the world thing. Nobody would have ever concepted that somebody will take sannyas. A person who is already beyond Paramahansa, who has already crossed this 1 billion name, this all stuff, but he is taking sannyas. Sannyas is supposed to be like, okay, this is something of the 3 modes of material nature, of the 3 worlds, Traivargiki. This was a sannyas concept before. Sannyas was only specifically meant for Mayavadis. Mayavadis लोग क्या करते थे, संन्यास
उनका क्या होता था कि संन्यास जब लेते थे तो शिखा को काट लेते थे और एक डंडा पकड़ते थे. बट दिस त्रिदंडी संन्यास विच वाज एक्चुअली टेकन, दिस त्रिदंडी संन्यास आल्सो सनातन कल्चर, बट दिस कॉन्सेप्ट Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj takes from Ramanuja Sampradaya, and he takes this such a great powerful step to preach. And that's why now we see in Gaudiya Vaishnava Sampradaya, devotees are brahmacharis, grihasthas, vanaprastha sannyasa. They are powerfully preaching because of this great क्या बोलते हैं उसको, standard set by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj. So then starts establishing Gaudiya Mathas practically throughout the whole India. 15 या 16 गौड़िया मठ तो सिर्फ नवदीप मंडल में ही है, 10 गौड़िया मठ वृंदावन में सेट करते हैं. उसके बाद फिर अदर रेस्ट ऑफ द इंडिया, अक्रॉस द इंडिया, पटना, इलाहाबाद, उड़ीसा, साउथ इंडिया, और 14 या 16 श्री चैतन्य महाप्रभु के जो चरण चिन्ह है जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु गए थे उसको इस्टेब्लिश करते हैं. और अब्रोड भी इस्टेब्लिश करते हैं गौड़िया मठ, जर्मनी में, लंदन में, रंगून में, और कहाँ पे, स्पेसिफिकली 3 जगहों पे. एंड he establishes Krishna consciousness very emphatically. But because he was preaching very powerfully, of course, many of his like followers, they are not able to accept the way Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj was preaching. It was like chopping business, क्या बोलते हैं, chopping technique, आर नहीं तो पार. बहुत ही powerful, bold preaching by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj. And in year 1934, when Srila Prabhupada meets with Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj first, it was 1922, right? Then after that, again he meets in Vrindavan. It was somewhere in 1935 or 1936. So there he tells that now see, there will be fire. There will be fire in what? Because people are still neophyte. Still they are fighting for little things. They are not thinking about the mission of Rupa Raghunath. So I think selling this all temples, I should create some books. I should print some books. So he expressing this thought to Srila Prabhupada, then Abhay Babu. And from very beginning, he is tirelessly writing. Everything means, every preaching activity means there should be writing. In 1913, he establishes Bhagavad Press in Calcutta. Then another press called in Assamese language in Guwahati. Then Paramarthi Press in Odisha. So like this, presses after presses. And Srila Bhaktisiddhanta Goswami Maharaj gives this first concept of printing books, and that he tells the name what is called Brihat Mridanga. मृदंग का साउंड कितना जाएगा, 1-2 बिल्डिंग के बाद 0, लेकिन बुक्स का साउंड कोसों दूर जाएगा और लोग पढ़ेंगे और हरिनाम संकीर्तन करेंगे. हरिनाम संकीर्तन मतलब ये नहीं सिर्फ ढोल ढाक बजाना. हरिनाम संकीर्तन मीन्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड